Hey, let's look at what happened. You see a crazy volume on the second candle, and then you see a down volume. That down volume's first candle's high was also broken. So, in such scenarios, if you're watching my post market videos, you'll probably know what to do. So, if you still have any doubts, let me know. But yeah, I have explained a lot of volume concepts in my post market videos which I've been posting on TradingView and on my YouTube channel. You can check on both places. Yeah, so not explaining this again. Nifty, coming to Nifty, yep. So what did I do and what did I do? So this was Friday's structure. This is today's. If you see, Nifty did two things. One is it went and it retested the Friday's support where it got a bounce and then it fell, and then again from 910 lows it went and it retested Friday's consolidation high, the higher level of the consolidation, and then again it went to a consolidation. So what did I do? So if you are basically not haven't you haven't traded anything till around 10 o'clock, probably the best scenario to wait for the first hour candle to close and then decide what to do instead of doing random trades. So if you haven't done anything and you see this kind of a structure in Bank Nifty and a consolidation, which is basically like Friday's pattern, you can always go short with stop loss this high. I would have done this, but I made a mistake here by not booking profits. What I did is I shorted this, and I thought I'd probably break this, and somewhere it'll probably land somewhere around 8:50 in the morning, but it did not. It came back, and I took my stop loss. Uh, so yep, so I did not go and short this because I was already negative. But this was probably the smart move. If you look at it on Friday's levels and think about how, from where the market fell, this was the zone retested consolidation, perfect. uh, Everything was nearly perfect, and your stop loss also becomes very very low, like 20 point stop loss, and your target becomes day low with a 60-70 point target. But yeah, I did not take this because I was in red and I did not want to risk more. So what did I do? If you watched my Friday's post market, I had mentioned this very very clearly. If this low breaks, which was Friday's low, I would go short on retest. So I did that. This broke, almost kind of a retest. I took around 990 levels, 890 levels, and exited around 850 levels. Why? Because if you come back on those blue boxes days, you will see that again there is a lot of consolidation happening here, the whole zone. So yep, I exited around 850 levels, did not catch the bottom, which was I think 835. Yep, so this was my trade. There was one more reason for going short here, which was basically today's idea was, if 130 is not making a new low, I will look for a long trade. But 130 was this candle which made a new low. So hence I was expecting some more downside in Nifty, which also confirmed or kind of was +1 to my strategy which I discussed on Friday. If you haven't watched it, you can probably go and watch, where I was interested in selling once this breaks. Now I think tomorrow I'd probably gap down, I don't know. And in terms of positional, I'm probably looking for a retest here around 650 levels. I was hoping that it breaks this, but looking at the structure, it looks like it is going in probably for a retest around 720 levels and 650 levels in spot. Let's see. I have one pretty awesome observation which I can probably discuss, but when I look at my likes and my boosts, I don't see any, so I don't want to discuss that. But it's a very very good observation, and it can probably make things a lot more clearer. But I'll probably discuss if I get some more likes and boosts on my videos. Till then, no, I won't be able to.
देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अगर आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल ने में एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आई थी और उसके बाद एक डाउन वॉल्यूम आया है। डाउन वॉल्यूम का जो इनिशिएटर था कैंडल, उसका हाई टूटा और फिर बैंक निफ्टी ने डे लो तोड़ा। अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऐसे पैटर्न्स में यूजुअली क्या होता है और क्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा नेक्स्ट पोस्ट मार्केट वीडियो में। तो बैंक निफ्टी का तो ये स्ट्रक्चर था। निफ्टी में आप देखेंगे तो ये था कि सुबह अगर आप 10 बजे तक नहीं ट्रेड कर रहे, यूजुअली अगर आप डे ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से आपको 10 बजे तक वेट करना चाहिए, जब तक आपके पास कोई सुबह का पैटर्न नहीं है। 10 o'clock क्लोज के बाद 1 आवर कैंडल, नया 1 आवर कैंडल बनता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो अगर आप कर रहे थे आज वेट, तो अगर आप देखेंगे तो 10 o'clock ने रीटेस्ट किया प्रीवियस कंसोलिडेशन का जो हायर रेंज था उसको रीटेस्ट किया और फिर एक कंसोलिडेशन में चला गया। और फिर तो जब ये कंसोलिडेशन में गया, इसके कंसोलिडेशन के हायर रेंज पे आप शॉर्ट कर देते, स्टॉप लॉस ये रखते। 25 पॉइंट्स का रिस्क है, डे लो स्टॉप टारगेट होता। जब ये कंसोलिडेशन में गया था, बैंक निफ्टी ऑलरेडी लो के आसपास थी, लो के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी, तो ये एक और अच्छा वो मिल जाता आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं लिया कंसोलिडेशन। मैंने सुबह मैंने ये इस रीटेस्ट पे निफ्टी को शॉर्ट किया था जब ये रेड कैंडल बना था यहाँ पर, और मुझे मिला भी था 70 पॉइंट्स, पर मैंने बुक नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसकी वजह से मैं रेड में था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे कंट्रोल करना, लेकिन अगर ये बाई चांस ये नहीं चलता तो मैं और रेड में होता। तो इसलिए मेरे को सुबह नहीं पसंद रेड में रहना, तो इसलिए मैं था और मैं वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहा था मैं? ये डे लो ब्रेक होने का वेट कर रहा था। क्योंकि मैंने फ्राइडे को एक ट्रेडिंग प्लान बताया था वीडियो में, पोस्ट मार्केट में, जिसमें ये था कि अगर ये डे लो टूटता है तो मैं रीटेस्ट पे इसको शॉर्ट करूँगा। अब ये डे लो जब ये टूटा, ये ऑलरेडी 130 कुछ था, 130 कुछ हो गया था। और मेरे आइडिया को जो मैंने दिया था कि ये बोला था कि अगर 130 का कैंडल लो नहीं बनाता तो मैं वीवैप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जाने का। पर ये 130 का कैंडल जो ये था, इसी ने डे लो तोड़ा। कहाँ गया हाँ, 130 का कैंडल ने डे लो नया लो तोड़ा। तो जब उसने वो नया लो तोड़ा तो मैंने रीटेस्ट का वेट करा अराउंड 890 लेवल्स, और डे लो तो नहीं पकड़ पाया मैं, नया ये लो तो नहीं पकड़ पाया, और मैं 850 852 के आसपास मैंने बुक किया। तो अगर मैंने ये सुबह थोड़ी जल्दबाजी नहीं की होती तो मैं 110% ये पकड़ता। मैं ये ट्रेड पक्का लेता। मैं कितना बुक करता, कितना पकड़ता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पक्का ये वाला ट्रेड लेता। ये तो इतना सिंपल और बुकिश ट्रेड है, जहाँ पर रीटेस्ट हुआ, प्रीवियस फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, बैंक निफ्टी लो के आसपास चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो इसको पक्का लेता। और इसमें स्टॉप लॉस इतना अच्छा आ रहा है, जहाँ की आपका स्टॉप लॉस है 985 980 अपर लेवल है, डे हाई 18015 है, स्टॉप लॉस होता ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, 35 पॉइंट्स का, और टारगेट अगर डे लो रखते तो आप 907 है, तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का टारगेट काफ़ी अच्छा आ रहा है ये। तो ये मैंने मिस कर दिया इसके वजह से सुबह जो मैं रेड में था। अब आते हैं मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दो चीज़ मैं वैसे तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये हाई टूटने का, वो टूट नहीं रहा, पर स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है शॉर्ट के लिए। तो मैं वेट करूँगा कल कैसे ओपन होता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस तरफ या इस तरफ, तो मैं वेट करूँगा क्या हो रहा है उसका। अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा ये दोनों टारगेट्स के लिए। कल का प्लान है ये मेरे लिए। और मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने वीकेंड पे किया था। तो उस ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए मुझे थोड़े व्यूज़ और थोड़े बूस्ट्स और लाइक्स चाहिए। तो अगर वो मिलते हैं मुझे तो मैं करता हूँ, तो मैं वो शेयर करूँगा। मैंने अभी तक जो भी डेटा दिया है सब फ्री है, तो एटलीस्ट थोड़े बूस्ट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, और लाइक्स करिए अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो फिर वैसे भी शेयर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। थैंक यू।